شاہد عباس اعظم صاحب اب آپ کے سامنے آفتاب پاکستان ابھرتا ہوا ستارہ جناب علامہ حیدر رضا غدیری صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ملک کی نامور شخصیت ہمارے بھائی مالکوں کے بڑے منظور نظر شاعر بھی اور ذاکر بھی جناب ذاکر غلام شبیر قریشی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ دعائے ظہور امام زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ورزقہ توبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلندتر صلوات۔ بشارت بھائی سامنے آ جائے۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببلاء العلیم وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی النبی والعلی وزوجة العلی وبنات العلی واولاد العلی وشیعت العلی ونصار العلی اما بعد فقد قال الہ العلی بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بلندتر صلوات۔ دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم اور عظیم خالق ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات اپنے دلوں میں آرزویں لے کر حسرتیں لے کر آئے ہیں، حسین کی پاک اماں اپنے دربار سے کسی کو خالی واپس نہ بھیجے۔ یہ جتنے حاضرین محفل ہے مولا کریم، یہ جو مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، میرے مولا ان کے دلوں میں جو نیک دلی حاجات ہیں صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا، مولا کریم ان کی حاجات کو قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم قاضی برادران نے یہ جو ذکر محمد و آل محمد برپا کیا ہے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مولا کریم سب مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں، یہ جتنے بھی پڑھنے والے ذاکرین عظام واعظین خطبہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ان کی ڈیوٹیاں بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ پہلی بھی دعا ہے اور آخری بھی دعا ہے، مولا کریم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مولا ہمیں اپنے وارث کی معرفت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، زیغم بھائی اگر سامنے آ جاتے چند منٹ کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے دشمن منکر منافق پہ لعنت، رزق کو حلال کیجئے جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جی 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 درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ وقت کی پریشانی آپ نے بالکل نہیں لینی، اس لیے کہ وقت کی نبض انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے ساتھ بولے گا وہ جو اپنے امام زمانہ کی ریت ہے۔ اگر کوئی کسی پیر کا مرید ہے تو وہ بے شک نہ بولے، جو امام زمانہ کا مرید ہے وہ میرے ساتھ ہم سفر ہو جائے اور میرے ساتھ بولے۔ میں نے کہا وقت کی نبضیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پوچھئے غدیری، اگر وقت کی نبضیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزاداران
इमाम मजलूम, वक्त की नब्ज़े इंसान के हाथ में नहीं, मेरे मौला के हाथ में है। इन उठे हुए हाथों को मौला सलामत रखे। जो जिक्र इमाम में बुलंद होते हैं ये तो जन्नत बन गई है। खुदा की कसम, ताजदार विलायत के छठे सरदार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, कहता मौला मैं मजलिस हुसैन से होके आया हूँ। राना साहब तवज्जो फरमाइएगा, कहा मैं इमाम हुसैन की मजलिस से होके आया हूँ। मोहम्मद के बेटे का चेहरा उतरा, किबरियाई तेवर के साथ जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दरूद पढ़े सैयद की जात पे जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बेहतरीन अकीदे वाले मालिक इमाम ज़माना इन्हें सलामत रखे, ज़ुबान में मौला मज़ीद तासीर अता फरमाए। दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पर। इजाज़त है सरकार, इजाज़त है आपकी। ताजदार विलायत के छठे सरदार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास बंदा आया, उसने कहा मौला मैं मजलिस हुसैन से आया हूँ। इमाम का चेहरा उतरा, किबरियाई तेवर के साथ जलाल में आके मोहम्मद का मोहम्मद बारिश। मौला फरमाते जाहिल तुझे पता नहीं तूने क्या कहा है? कहा मौला मैंने यही कहा है, तू जन्नत से आया है। एक दो बातें आपको हदिया करके मिंबर सरदारों के हवाले। पूरी कायनात आलम की इब्तदा हुई है नुक्ते से। पूरी कायनात की इब्तदा किस चीज से हुई? नुक्ते से। मैं दुआ लूंगा आपसे, पूरी कायनात की इब्तदा हुई है बशारत भाई नुक्ते से किया। अब अगर यहां से दुआ ना मिले तो फिर कहां से दुआ मिलेगी? मैंने कहा अल्लाह ने नुक्ते को खल्क किया, नुक्ते को खल्क करके अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे खल्क किया है, अब तेरी ड्यूटी पूरी मजलिस सिर्फ इसी नुक्ते पे पढ़नी है। मैंने अल्लाह ने नुक्ते को जाहिर किया, खल्क किया। नुक्ते से कहा मैंने तुझे खल्क किया है, तू मुझे जाहिर कर। अब उस नुक्ते ने अलिफ को जाहिर किया। जब अलिफ को जाहिर किया उसका कोई अपना नाम नहीं था, क्योंकि अलिफ भी बनता है अलिफ से, लाम से और फा से। तीन हुज्जतों की जरूरत थी, हुज्जतें तो मौजूद नहीं थी। जैसा कि हमारे भाई कहते हैं, हमारा अकीदा ये नहीं है। अल्लाह ने नुक्ते को खल किया, नुक्ते को खल करने के बाद अल्लाह ने कहा मैंने तुझे खलक किया है, तो मुझे जाहिर कर। नुक्ते ने अलिफ को जाहिर कर दिया, जाहिर किया। इस्म ने अल्लाह को जाहिर करके कायनात को बता दिया कि हम 14 को वो बनाने वाला है, हम उसे जाहिर करने वाले हैं। या अली, मौला आपको सलामत रखे, सलामत रहिए। या अली, मैंने तुझे खल्क किया है, तू मुझे जाहिर कर। नुक्तों ने अलिफ को जाहिर किया, अलिफ ने बा को जाहिर किया, बा ने इस्म को जाहिर किया, इस्म ने अल्लाह को जाहिर किया। अब अगर किसी का कलेजा चलता है गदरी की बात से तो चले, गदरी जुमला देने लगा है। नुक्ते ने अलिफ को जाहिर किया, अलिफ ने बा को जाहिर किया, बा ने इस्म को जाहिर किया, इस्म ने अल्लाह को जाहिर किया। जब अल्लाह को जाहिर कर दिया ना, तो अल्लाह ने रहमान को जाहिर किया, फिर रहीम को जाहिर किया। ताजदार विलायत के छठे सरदार से पूछा गया मौला, इस्म ने तो अल्लाह को जाहिर कर दिया, ये जो अल्लाह ने रहमान और रहीम को जाहिर किया ये कौन है? तो इमाम फरमाते रहमान हसन है, रहीम हुसैन है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत। लो जी दुआ मिल गई है मुझे। अल्लाह ने रहमान और रहीम को जाहिर किया। अब बात इससे अगली करनी है, खुदा की कसम मैंने नुक्ते से बात शुरू की और नुक्ते पे ही मैंने पढ़ना है, क्योंकि मुझे अलिफ आता नहीं है। अभी मैं अलिफ तक नहीं पहुंचा, मैं तालिब इल्म हूं। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा डॉक्टर तनवीर अब्बास कदीरी साहब, अल्लामा जाकिर हुसैन कमर साहब, आसिम एडवोकेट साहब, जिनकी जूतियां सीधी करके आज मैं मिंबर पे आया हूं, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। गदीरी जुमला देने लगा है, मैंने नुक्ते से बात की है और नुक्ते पे ही बात खत्म होगी। मैं कह रहा हूं तवज्जो फरमाइए, जुमला देने लगा हूं। शजर भाई जरा कैमरा घुमाइएगा, पता कीजिएगा कि किसका हाथ जमीन पे रहता है। मेरे उस्ताद से पूछा गया सरकार ये अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ दिए हैं, किस लिए दिए हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ ही इसलिए दिए हैं, एक हाथ मेरे दादे अली की विलायत के लिए, दूसरा हाथ मेरे दादे हुसैन के मातम के लिए। मौला आपको सलाम।
सलामत रखे। जुमला मैंने आगे देना है, ये तमहीद है, जरा सुनिएगा। जज़ाकल्लाह बेशक। मौला आपको सलामत रखे। जुमला दूं मैं अब। नुक्ता, ये हाथ बंधे हैं सैयदुस सादात सबके सामने, नुक्ते को सहन में रखिएगा। राना साहब अगर नौकरी पसंद आए तो बोलिएगा जरूर, जैसे बात अच्छी लगे वो मेरे साथ बोलेगा। मैं नुक्ते की बात करने लगा हूं। मैंने कहा जिसके नाम के नुक्ते की ताब अल्लाह के नबी न ला सके उस कमाल को अली कहते। जिसके नाम के नुक्ते की ताब अल्लाह के नबी न ला सके उसे अली कहते हैं। और गदीरी मिंबर रसूल से कह रहा है। आप जहन में सोचे गदीरी हवा में बात कर रहा है, हवा में बात नहीं कर रहा मैं पूरी दलील से बात कर रहा हूं। मैंने कहा जिसके नाम के नुक्ते की ताब बशारत भाई अल्लाह के नबी न ला सके उस कमाल को अली कहते हैं। नुक्ते की ताब, नुक्ते को सहन में रखिएगा। मिस्र का बाजार है, मिस्र का बाजार है और बिकने वाला एक नबी है। बात अच्छी लगे तो बोलना जरूर है। मिस्र का बाजार है, बिकने वाला एक नबी है। ऐलान हो गया मिस्र के बाजार में राना साहब कि एक नबी बिकने के लिए आया है और बड़ा हसीन और जमील है। जब ऐलान हुआ ना कि एक नबी बिकने के लिए आया है, बादशाह मिस्र ने, तवज्जो फरमाइएगा, बादशाह मिस्र ने ऐलान किया कि मेरी पूरी बादशाहत, जहां जहां पे भी मेरी बादशाहत है वहां पे मेरी रैयत है और मैं हुक्म देता हूं, मैं अपने मुशीरों से कहता हूं ऐलान कर दो पूरे मिस्र में कि ये जो हसीन नबी बिकने के लिए आया है इसे कोई नहीं खरीदेगा, इसे सिर्फ मैं बादशाह मिस्र खरीदूंगा। अच्छा, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में खड़े, अभी बचपना है, नबूवत बचपन में है अभी, हालांकि नबूवत में बचपन नहीं होता, अभी नबूवत का बचपना है और मिस्र का बाजार है, बिकने के लिए एक नबी है बड़ा हसीन और जमील। बादशाह मिस्र ने ऐलान किया इसे कोई नहीं खरीदेगा, ऐसे मैं खरीदूंगा। कहा अच्छा। बादशाह मिस्र के वजीर मुशीर आए, कहा कि हम तुझे खरीदना चाहते हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे खरीदना चाहते हो? कहा हाँ तुझे खरीदना चाहते हैं। अगर बात किसी से सुनी हो तो चुप रहिए, अगर नई बात हो तो बोलिएगा जरूर, क्योंकि हम डीवीडी वाले नहीं हैं। नारा हैदरी। कहा मिस्र के बाजार में जब यूसुफ नबी बिकने के लिए आया तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तू मुझे खरीदना चाहता है? कहा मैं नहीं खरीदना चाहता, मेरा बादशाह तुझे खरीदना चाहता है। कहा अच्छा कैसे खरीदोगे? उसने कहा कि हमारे पास मिस्र के खजाने हैं, खजानों से खरीदेंगे। कहा अच्छा, एक पलड़ा रखा जाए, यानी तकड़ी रखी जाए, एक पलड़े में खजाने आए, दूसरे पलड़े में यूसुफ नबी आए। एक पलड़े में मिस्र के खजाने, दूसरे पलड़े में जनाब यूसुफ नबी। जब खजाने आए ना, यूसुफ नबी टास से मस ना हुए। मुशीरों ने बादशाह वक्त को जाके बताया बादशाह सलामत हमने खजाने रखे, यूसुफ नबी टास से मस ना हुआ। बादशाह मिस्र ने अपना तख्त छोड़ा, बाजार में आया, कहा देखो तो सही जो नबी खजानों से नहीं बिका उसकी ज़ियारत तो करूं, वो कौन है? कहा अच्छा। बाजार में आया, बाजार में आके यूसुफ नबी को देखा, कहा मैंने मिस्र के खजाने रखे तो बिका नहीं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुमला कहा, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे खरीदना चाहता है? कहा हाँ मैं बादशाह मिस्र हूँ, मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ, मेरी खुदाई खतरे में चली जाएगी, मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ। कहा अच्छा तू मुझे खरीदना चाहता है, अपना जोर लगा ले। उसने मिस्र के तमाम खजानों को इकट्ठा किया, खजाने इकट्ठे किए, उस तकड़ी में रखे। एक पलड़े में मिस्र के खजाने, दूसरे पलड़े में यूसुफ नबी। यूसुफ नबी टास से मस ना हुए, यूसुफ नबी टास से मस ना हुए। अब काफिर का चेहरा उतरा, जैसे ही मिस्र के काफिर का चेहरा उतरा ना, तो मिस्र के काफिर के उतरे हुए चेहरे पे हुज्जत को तरस आया। ये आज भी जो दाएं बाएं हैं इन पे अल्लाह का करम नहीं, हुज्जत का तरस है, ताकि पकड़ने में आसानी होगी। परेशान नहीं होना आपने। गदीरी जुमला इसे आगे देने लगा है।
مصر کے خزانے. اس نے کہا تو بکا نہیں, میں نے پورے مصر کے خزانے اکٹھے کیے, تو بکا نہیں, کس چیز سے بکے گا؟ اب یوسف نبی کا جملہ ہے, اگر میرا ہوتا تو آپ خاموش رہتے. یوسف نبی نے ایک جملہ کہا سن تو مجھے خریدنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں خریدنا چاہتا ہوں. کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ نبوت کو کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ تو مجھے خریدنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. یوسف نبی کہتے ہیں نبوت کو مال و دولت سے نہیں خریدا جاتا. اس نے کہا پھر تجھے کیسے خریدوں؟ کہا مجھے آپ کی خاموشی کو سلام جو کاغذ قلم پہ نہیں بولے. بشارت بھائی بابا جی توجہ فرمائیے گا. سیدہ کے سنگتی کو سجاد کہتے ہیں.